Hello, good evening, everyone, and all of you Gromo team members. This is Kushal Gera. By profession, I'm a social worker. I make happiness to get smile on their people faces by true heart. With our organization and NGO for Keep Going, Keep Smiling, which is pridefornation.com. As we should all are proud on us that we are in chapter of the real life as a human being, that we can grow and we can save our universe and helping to each of everyone, each of others, that it's grow. It's a kind of business of entity of life that we should helping each other, then we can grow automatically. And about my businesses and many more, that I do multiple businesses with me, that I'm giving to 100% to the people, that 100% consultation with the 5-star services, that I am going to promise with the everyone that they are kind of my family. And like kind of I'm buying anything from the market, then should I take ahead, what step should I take, then I need to compare each and everything. It's kind of like that. If I am going to tell you about anything or like any product about in the market, then I need to search about on like myself first of all, that अगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे करता, इसके लिए मुझे एक्चुअली में क्या मिल रहा है और मैं कितना पे करना चाहिए, इसकी वर्थ है या नहीं है. So today the topic is really, like the today topic is really amazing. And आज के टाइम में ये जो हम अभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इट्स एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री. इट्स एन अमेजिंग टॉपिक. अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी देखेंगे, एक सिंगल पर्सन भी है तो उसकी भी नीड है. चाहे वो आपका एक दिहाड़ी मजदूर हो या फिर आपका एक बहुत ही हायर रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, ऑन एवरी सिंगल एंटिटी सिंगल पर्सन शुड बी हैव इंश्योरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन रीज़न बीइंग कि आप ऑलरेडी सब जानते हैं कि इंश्योरेंस एक्चुअली में क्यों रिक्वायर्ड है एंड आपको किस किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि आपके रिस्क को कवर करता है एक छोटे से अमाउंट को लेकर के. सो इट्स रियली गुड दैट आप अपनी सेविंग्स करते जा रहे हैं एंड इन द एंड ऑफ द टाइम, और या फिर एक कुछ सेकंड में एक ऐसी कुछ एक मिस हैपनिंग होती है, कुछ ट्रेजेडी होती है, दैट टाइम आपने जो भी सेविंग की होती है वो ऑटोमेटिकली सब नील हो जाती है. अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं इंश्योरेंस की, अगर हेल्थ इंश्योरेंस को अगर मैं करूं बात आपसे आज, अभी ड्यू टू कोविड कितने ही जाने हमने लॉस करी हैं अपनी ही फैमिलीज़ में, एंड हमने अपने सराउंडिंग में ऑलरेडी वी हैव सीन ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाट गोइंग ऑन, एंड कितने कितने बिल्स आपके सामने आ रहे हैं. लाखों रुपए के बिल लोगों ने अपनी पॉकेट से पे किए जिनके पास इंश्योरेंस नहीं थे, क्योंकि मरने दे ना कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है किसी भी इंसान को आज के टाइम में, और कभी भी कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा अपने इंसान को मरने के लिए. कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में हमें चेंज करना होगा एग्जैक्टली कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और किस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए. बिफोर स्टार्ट द इंश्योरेंस, व्हाई वी एक्चुअली नीड इंश्योरेंस इन आवर लाइफ ऑन हाईली प्रायोरिटी बेसिस. बट here first of all I have to thanks to Mr. Ankit Khandelwal, who is the CEO of Gromo, who has created an amazing platform to our dreams comes true. Really great from my heart that it's really amazing application Gromo, and really amazing platform that who wants to work in insurance industry and wants to earn more than from your heart, like whatever you want to earn, then you can earn here with the support of Gromo team, because they have a energetic team and very like amazing doing work from their side, that they are giving helping each and everything in your business and your personal information and your personality development in motivation sector and IT technology. They are giving you each and everything in one of bundle, that is which is Gromo. So now I have to tell that insurance क्यों एक्चुअली में हमें रिक्वायर्ड है, और इंश्योरेंस करने के लिए हमें किन किन बातों का एक्चुअली हमें ध्यान रखना चाहिए, और क्या हमारे पास नीड होगी कि इंश्योरेंस हम एक्चुअली में किसी पर्सन का पर्टिकुलर कर सकें, और उसको क्या हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी, क्या हमें सर्विसेज उनको देनी होंगी,
किस तरीके से हम उनको प्लान्स के बारे में बता सकते हैं, किस तरीके से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वाई इंश्योरेंस इज नीड फॉर यू. So there is a lots of things in their Groma application. Everything is there because I'm coming on the point like what kind of requirements do you have to sell the insurance. First of all, आप अगर देखते हैं इंश्योरेंस या whatever कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए you should have some knowledge. Not some, you should have 100% knowledge if you are going to sell anything in the market. Because you can give rebuttal to them कि हाँ exactly कि what you have और आपको क्या मिल रहा है और क्या सर्विसेज आपके साइड से मिलेंगी. देन यू शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज. सो नॉलेज की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ग्रोमो एप्लीकेशन के अंदर इट्स एन अमेजिंग रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल देयर इन ग्रोमो एप्लीकेशन कि जहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, everything about the insurance you can learn from there and you can see कि एक्चुअली में इंश्योरेंस किस तरीके से वर्कआउट करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वर्कआउट कैसे होते हैं. IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जिससे पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री चलता है, जिस तरीके से आपका सेबी जो कि होल्ड करता है आपको शेयर मार्केट को, सेम थिंग लाइक जैसे कि लाइक आपका RBI जो कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आपको बैंकिंग को होल्ड करता है. तो सेम थिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपका IRDA आपका होल्ड करता है पूरा. जितनी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज कंपनीज होती हैं वो सभी पहले IRDA से अपना लाइसेंस करवाती है, देन दे कम्स इन द मार्केट जो अपने प्लान वो लॉन्च करती है. राइट. सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं बात कर रहा था आपको नॉलेज की, तो नॉलेज आपको लेनी होगी. अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप सर्च करेंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा बिकॉज टाइम इज़ मनी. एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ ग्रोमो की, दे हैव गिवन ईच एंड एवरीथिंग डिटेल ऑन द एप्लीकेशन. आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना, जस्ट क्लिक ऑन दैट, आपको यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग डिटेल अबाउट टर्म इंश्योरेंस और किस तरीके से वर्क करता है, क्या प्लान्स होते हैं, किस तरीके से ये आपका वर्क करेगा. ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, एवरीथिंग लाइक काइंड ऑफ every insurance is there in the Groma application and they have a really amazing team people कि जो आपको पीछे बैकग्राउंड से आपकी हेल्प करते हैं. As now we have discussed the first, we should have information 100% before delivering to the client or your people जिनको आप इंश्योरेंस देना चाह रहे हैं. Right? Now the second major points comes to you, that lead generation part and management part. Lead generation part is really great helping from Gromo because there is main reason कि हम इंश्योरेंस करने से पहले ये सोचते हैं कि लेगा कौन. क्योंकि आप बड़ी बड़ी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज में देखेंगे दे हैव अ टेक्नोलॉजी टीम जो लीड जनरेशन का क्रिएशन का काम करती हैं. बट हाउ कुड यू क्रिएट द लीड्स फ्रॉम योर साइड. इट्स रियली अमेजिंग आइडिया दैट जो एक हमारे जो ये एप्लीकेशन है ग्रोमो, इसके ऊपर आपको मिल जाता है. आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर्स हैं 1000, 2000 एंड सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास बाइक हैं, इन सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है. सो व्हाट दे हैव प्लान इन ग्रोमो एप्लीकेशन, आपको जस्ट एक वहाँ पर देर इज़ अ ऑप्शन, जस्ट यू हैव टू क्लिक, आपका चालान चेक करें और जैसे ही आपके पर्सन जो आपके कॉन्टैक्ट हैं उस लिंक को ओपन करेंगे और कोई भी अपना चालान या अपनी इंफॉर्मेशन पॉलिसी कब तक है दे नीड टू चेक. और वो करना चाहते भी हैं, कहीं चलते चलते रोड के ऊपर हमारा कोई चालान ना कट गया हो जो हमें नॉलेज नहीं हो. तो इस टाइप से जैसे ही वो अपनी इन्फॉर्मेशन पुट ऑन करेंगे उस लिंक के अंदर, दैट टाइम लीड विल क्रिएटेड और वो आपके डायरेक्टली आपके ग्रोमो जो आपकी एप्लीकेशन आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी. राइट. अब नाउ उसकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है आफ्टर 2 months. यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल इन फ्रंट ऑफ यू इन दैट एप्लीकेशन कि ये वाली गाड़ी है उनके पास, ब्लैनो है फॉर एग्जांपल, इतनी तारीख को इनका एक्सपायर हो रहा है, इस कंपनी से है, आप सब देख पाएंगे. और ही इज़ योर फ्रेंड, नाउ द टाइम हैज़ स्टार्टेड. आप यू कैन कॉल देम क्योंकि ये आपके फ्रेंड है, यू कैन टेल देम कि आई एम डूइंग काइंड ऑफ बिजनेस एंड रियली अमेजिंग बिजनेस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ एंड आई एम द एक्सपर्ट. एंड जो मेरे पीछे जो टीम है, वी हैव अ रियली रियलिस्टिक एनर्जेटिक टीम जो कि परफेक्टली 100% हम मुझे हेल्प करती है और आपको भी हेल्प करेगी आपके पूरे 100% सेटिस्फैक्शन के साथ.
तो वहाँ पर आप इजीली लीड क्रिएशन का पार्ट भी आपका क्रिएट हो गया। सेकंड थिंग आती है हमारे सामने, जो मेजर कंसर्न आता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का पार्ट जो होता है वो सबसे बड़ा एक पार्ट ऐसा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज अगर आपने अपनी लीड्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो उस लीड की कोई वर्थ नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट। सो अभी कोई क्लाइंट बोल रहा है कि यू हैव टू कॉल 7 PM एंड नाउ द टाइम इज फॉर एग्जांपल 4 PM। अब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको रिमाइंड करा सके, राइट? अब आप क्या करते हैं, पर्सनली आप उसको कॉल करेंगे बट आपके माइंड से स्लिप हो सकता है। आप 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, क्योंकि हो सकता है माइट भी उसी टाइम स्लॉट के अंदर 3-4 लोगों ने आपको टाइम दिया हो। देन व्हाट यू विल डू, उस टाइम पर आपका माइंड पजल हो जाएगा। आप कितनी ही चीज़ों पर लिख करके रखेंगे, काफ़ी आपका वर्कलोड बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे उस सिनेरियो में। तो यहाँ पर आपके पास ग्रोमो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि जैसे ही आपने जो टाइम सेलेक्ट किया हुआ था, देयर इज़ अ डायरी ऑप्शन, आपने उसमें सबमिट किया कि दिस क्लाइंट इज़ इंटरेस्टेड एंड वांट टू बाय, और उसने मुझे टाइम दिया है फॉलो अप का। ऑन दैट टाइम, बिफोर 20 मिनट्स और बिफोर हाफ एन आवर, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम ग्रोमो एप्लीकेशन और ग्रोमो ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में कि आपका ये क्लाइंट है और इस टाइम पर आपको उनको कॉल करना है। तो बहुत सिंपल हो गया, आपका लीड भी आपने क्रिएट कर ली बहुत ईजिली और आपने उसको मैनेजमेंट भी कर लिया। पर्टिकुलरली आपके पास अगर 50, 100, 2000 क्लाइंट होंगे, देन यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल यार, कि एक्चुअली में वो आपको हेल्प कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है आपका डिजिटल का पार्ट जो होता है, आपका मार्केटिंग का पार्ट। आप पर्सनली आप मैसेज कितनी बार डालेंगे आप किसी को, देन देयर इज़ अ गुड थिंग कि वहाँ पर बहुत सारे ब्रोशर्स, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के आपके एक टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आपकी पूरी एडवर्टाइजमेंट की एक पूरी इन्फॉर्मेशन है। जस्ट यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट, ऑन शेयर बटन, एंड ऑटोमेटिकली जिस चीज़ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे वो सेम इट विल कम्स ऑन योर व्हाट्सएप जो आप यूज़ करते हैं, जो कनेक्टेड है आपके उस एप्लीकेशन के साथ, उसमें आपने कनेक्ट किया, ऑटोमेटिकली जस्ट सेलेक्ट करने पर ही वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे मैसेजेस एंड जो आपके बेस्ट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप अपने क्लाइंट को, अपने बायर को देना चाह रहे थे इन्फॉर्मेशन, दे कैन लीड ईजीली। सो बहुत ही वर्थफुली आपका टाइम सेविंग, आपका लीड क्रिएशन, आपका टाइम मैनेजमेंट। सो बिफोर सजेस्टिंग द प्लान टू योर बायर, you need to keep a one thing in your mind very carefully, which is need analysis. अगर आपने सॉरी अगर आपने नीड एनालिसिस किसी का बहुत अच्छे से किया है, एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, जो आपके पर्सन है जो बाय करना चाह रहे हैं पॉलिसी, फॉर एग्जांपल somebody is looking for the maternity benefit, तो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए द पॉलिसी इज डिफरेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, and if someone is looking for the policy for parents, and that is also different, and someone is looking for the youngsters, so that is also different. So different plans and different products are there in the market. First of all, we have to learn कि exactly what they are looking for. अगर हमें easily पता चल जाता है, हमने एनालिसिस कर लिया कि एक्चुअली वो लेना क्या चाह रहा है हमारा क्लाइंट, उसको किस चीज़ की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे ट्रैवल के लिए अपनी एक अच्छी लग्जरी कार चाहिए, तो मैं बाय करने शोरूम में जाता हूँ, तो मुझे लग्जरी कार ही दिखाई जाएंगी, मुझे पिकअप या फिर लोडिंग का नहीं दिखाया जाएगा। तो दैट इज़ नीड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, एग्जैक्टली कि वो आपका पर्सन एक्चुअली वो लेना क्या चाहता है और क्या पॉलिसी वो देख रहा है। देन उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, उसको सजेस्ट उस पर्सन को कि एक्चुअली में इस पॉलिसी के अंदर आपको सर ये सारी चीज़ें, जिस बेनिफिट को आप देख रहे हैं, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर, एंड ये इतनी सर्विसेज के साथ, इतनी बेनिफिट्स के साथ, इस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको मिलेंगी, और ये आपका लॉकिंग पीरियड होगा। आप एक चीज़, सिंगल चीज़, सिंगल थिंग, आप कुछ भी अपने क्लाइंट से, अपने पर्सन से कुछ मत छुपाइए, बायर से, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने एक सिंगल पॉइंट भी अगर मिस किया, और वहाँ पर क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर जो होते हैं उन पर ज़्यादा बिलीव करना पसंद करते हैं। मेरे चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का इंश्योरेंस करता है, बट दे डोंट हैव इंश्योरेंस नॉलेज, बट कर रहा है। बट उस कंडीशन में अगर आपने कहीं भी एक लूप पॉइंट छोड़ा,
तो वो आपका सारा का सारा बेनिफिट जो आपने उनको एक्सप्लेन किया था पॉलिसी के रिगार्डिंग कि एक्चुअली में सर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये आपको होगा, ये आपको होगा, आपने अपनी 98% इन्फॉर्मेशन तो दे दिया उसको, उसका काम हो गया, उसको नॉलेज मिल गई, बट आपका काम यहाँ पूरा नहीं हुआ। तो देर इज़ अ थिंग कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो 100% होनी चाहिए, 100% करेक्ट होनी चाहिए, जो कि लगे कि हाँ इट्स अ गुड। एंड 100% मीन्स वाई एम सेइंग 100% बिकॉज 100% गिव्स बाय 100%। अगर 1% भी लेस होता है तो आपका वो 100% कभी भी अचीव नहीं होता है। मार्क्स देखते हैं ना, तो सेम थिंग इज लाइक दैट कि अगर 1% भी कम रह गया तो फिर वो 99% ही है। तो देन यू हैव टू गिव 100%। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर इफ यू विल गिव about all knowledge about the policies and terms and conditions very calmly to the client, definitely he will think your emotions और आपकी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद he or she will take a decision as soon as possible, और वो आप ही से वो पॉलिसी भी कराएगा और आपको रेफरेंस भी देगा। सो नीड एनालिसिस पॉलिसी सेल करने से पहले, किसी प्लान को सजेस्ट करने से पहले आप उसको कर लीजिए एक्चुअली में व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो नाउ as in the end, I would like get 3 to 5 minutes more. You know, like insurance is a business of feelings. And सबसे पहले आप अपने माइंड में आपको you have to make up your mind that you are helping to people to sell insurance from your heart. You know why? Because insurance जब बंदा कोई भी पर्सन बाई करता है, देन उसके रिटर्न में उसे सिर्फ कागज़ का टुकड़ा मिलता है, जो कि होता है विश्वास, बिलीव, फीलिंग्स, कि अगर कुछ भी इश्यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, देन कंपनी एंड यू विल टेक अ स्टैंड फॉर द पीपल जिन्होंने आपके थ्रू ये इंश्योरेंस करवाया है या जिससे सर्विसेज उनको मिलनी है, वो सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए। बिकॉज आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बाई करते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, आप कुछ पे करते हैं उसके लिए, उसके रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ आता है। बट इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास पे करने के बाद एक कागज़ का टुकड़ा जाता है। सो वो कागज़ का जो टुकड़ा होता है वो एक फीलिंग्स होती है जो उस इंसान को बिलीव कराती है कि अगर भगवान ना करे कोई मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली के साथ या मेरे रिलेटिव्स जो भी जिनके लिए उन्होंने ये पॉलिसी बाई की है, कुछ इश्यूज़ होती है या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ पर वो कागज़ जो पेपर्स हैं, फीलिंग्स को वहाँ काम आने चाहिए। सो दिस इज़ इंश्योरेंस। और जैसे ही आप अपने क्लाइंट्स को, अपने बायर्स को, अपने फैमिली मेम्बर जो आपसे परचेज़ करना चाहते हैं इंश्योरेंस, उनको एग्जैक्टली आप समझाएंगे कि एग्जैक्टली कि इंश्योरेंस की नीड क्यों है, क्यों इंश्योरेंस आज के टाइम पर हाईली प्रायोरिटी बेसिस पर हमारी लाइफ में होना चाहिए, देन डेफिनेटली वो आपसे पॉलिसी बाय करेंगे और आपकी अहमियत जो आप हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र, बेस्ट कंसल्टेशन आप जो उनको दे रहे हैं, दे विल बिलीव ऑन यू और आपके साथ जुड़ करके आपकी लाइफ के साथ आपका फ्यूचर ग्रो करेंगे। बिकॉज उन्हीं के साथ आपका फ्यूचर ग्रो होगा। दे विल हेल्प यू आउट एंड दे विल हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम्स फुलफिल कि जो आपने देखे हैं। सो इन द एंड ऑफ द टाइम अब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच ग्रोमो टीम एंड रियली थैंक यू। सो टेक केयर एंड प्राइड फॉर नेशन, keep going, keep smiling, as always from your heart that we are Indian, we should keep it up, that helping each others, it's a business of insurance industry। आप उनकी हेल्प करके अपने आप को और उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, अपने फ्यूचर्स, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, लविंग यू, बाय, टेक केयर।